Yes, good morning to all. One important information: all are wash your hands cleanly 15 to 20 times in a day, and don't go outside unnecessarily. Stay at home, be safe, and utilize your time in a proper way. Okay. Before you see this video, open your textbook prescribed by CBSC, that is NCRT textbook. Okay. Today we discussed about that structure of a cell. In the previous class we discussed about that discover of cell, and then function of the cell. These are the topic which we clear in the previous class. uh, Today we discussed about that structure of a cell. So what is the structure of the cell? See here. See, this is a cell. The structure of a cell is mainly, the cell consists of mainly three parts. That is, that outer part is called as a cell membrane, and then that the center part of the cell of is called as a nucleus, and then between the cell membrane and the nucleus, a part called as a cytoplasm. Cytoplasm. So this is the structure of an animal cell. So if we see that plant cell, one more part is there. That outer structure of the plant cell is a consist of a cell wall. Okay, this is the structure of an animal cell. Okay, now we go to that discuss about that cell. What is that diffusion? What is that osmosis process? And then what is that function of cell membrane? So these are the topics which we discussed now. So first we discussed about that cell membrane topic. Okay, cell membrane. Cell membrane. The other name of cell membrane is plasma membrane. Plasma membrane. And other name also we called as the plasma membrane, and then another name is also called as the selectively permeable membrane. That is selectively permeable membrane. Selectively permeable membrane. Okay, these are that different names of cell membrane. That is plasma membrane, selectively permeable membrane. Now we go to that discuss about that um, what is that cell membrane. That cell membrane, it is a flexible, it is a flexible, flexible means लचीलापन होता है ये, and made up of made up of organic molecules. It's made up of organic molecules, and it is made up of an organic molecules called as the lipids and प्रोटीन्स. ये किससे बना है सेल मेम्ब्रेन? लिपिड से बना है और प्रोटीन से बना हुआ है. जो फिर ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है. लिपिड्स और प्रोटीन से बना हुआ है. सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. ओके, नेक्स्ट, अमीबा इज ऑल्सो हैविंग यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स. मैंने बताया था आपको ये मल्टीसेलर यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स में भी एक सिंगल सेल होता है. सिंगल सेल के अंदर भी सेम प्रोसेस, ये भी सेल मेम्ब्रेन होता है. सेल मेम्ब्रेन उसमें भी फ्लेक्सिबल ही रहता है फिर. ओके, सो उसके बारे में लिखेंगे हम. द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन also
enables to cell to engulf in food, engulf यानी निगलना, in food and other materials from its external environment, from its external environment. Such processes are known as endocytosis. Endocytosis. SIS. Okay. Endocytosis. This is the name of the process. Okay. What is endocytosis? Ask. The flexibility of cell membrane. Already that cell membrane is a flexible यानी लचीला होता है. It enables to cell to engulf in food. फूड को निगलने के लिए हेल्प करता है एक्सटर्नल मटेरियल्स फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. बाहर से जो भी फूड लेते हैं हम बाहर से लेते हैं तो वो फूड को लेने के लिए हेल्प करता है ये सेल मेम्ब्रेन एक्सटर्नल से. सच प्रोसेस इज नोन एज ए endocytosis. So same process है. Amoeba is also acquires its food through such processes. अमीबा सिंगल सेल है, फिर भी इसी प्रोसेस से ही ये भी एक्वायर करता है जो फूड को. अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू such processes. Okay, so amoeba is also acquires its food through such processes. Which processes amoeba takes the food? By the process called as a endocytosis. Okay, this is one of the important topic is that. Now we go to the functions of plasma membrane. Functions of plasma membrane. Functions of plasma membrane. ओके, पॉइंट वाइज देखेंगे क्या है इसका फंक्शंस. इंपॉर्टेंट है फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इट अलाउज the entry and exit some selective materials in and out of the cell. The cell membrane therefore acts as a selectively, that is semi-permeable or selectively permeable membrane. Okay, this is that one function. It allows the entry and exit of some selectively materials in and out of the cell. यानी जो सेल को चाहिए अंदर वो ले लेता है और जो नहीं चाहिए सेल से बाहर निकाल देता है. That process is called as a plasma. That's a function of the plasma membrane. And then second function of that, it helps to maintain the shape of the cell. The shape of the cell. Okay, this is the second
function of the plasma membrane, and the third is it provides protection. It provides protection against bacteria or microbes or foreign substances. ओके, फॉरेन सब्सटेंसेस, जो भी हम बाहर से जो भी सब्सटेंसेस जा रहा है वो हमारे बॉडी में सेल के अंदर एंट्री करना है, तभी वो एंट्री करेगा प्लाज्मा में। अगर एंट्री नहीं करना है तो वो बाहर ही रख देगा। तो दैट इज इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट माइक्रोब्स ऑल्सो। माइक्रोब्स भी एंट्री होता है हमारे बॉडी के अंदर, उसको भी एंट्री होने नहीं देता है इस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। जो नेसेसरी चाहिए वही सेलेक्ट करता है, उसी को एंट्री करता है, इसीलिए हम बोलते हैं सेलेक्टिवली पेरिमेबल मेम्ब्रेन। ओके, दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ we go to the topic next is transport. So that is transport में उसमें प्रोसेस देखेंगे। फर्स्ट है डिफ्यूजन। व्हाट इज ए डिफ्यूजन? द मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस, द मोमेंट ऑफ ए सब्सटेंस। सब्सटेंस मीन्स कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, जैसे सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकते हैं और गैशियस हो सकता है। दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस फ्रॉम ए रीजन of its higher concentration to lower concentration, higher concentration to higher concentration to a region of its lower concentration, lower concentration. This is called as a diffusion. Say for example, एक सेल है, ये सेल है, ये इसके अंदर न्यूक्लियस है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोसेस होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन यानी मात्रा ज़्यादा बढ़ जाता है सेल के अंदर, तो बाहर क्या होगा? कम होगा। तो हाइयर कॉन्सेंट्रेशन अंदर के ओर ज़्यादा हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, बाहर के ओर कम रहेगा, तो इट ट्रांसपोर्ट बाहर की तरफ जाएगा। क्योंकि इसके डिफ्यूजन का मतलब ही है द मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन। हायर कॉन्सेंट्रेशन से कहाँ जा रहा है? लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करेगा। सो सच ए प्रोसेस इज कॉल्ड एज ए डिफ्यूजन। ओके, समझ में आया? डिफ्यूजन का मतलब जहाँ हायर कॉन्सेंट्रेशन होता है तो वहाँ से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करेगा, तो दैट इज कॉल्ड एज ए डिफ्यूजन। वो सब्सटेंस कोई भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसेस भी हो सकता है। फिर ओके, एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी इसी प्रोसेस में होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जैसे हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, हमारे सेल के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाता है, तो बाहर से ऑक्सीजन लिया जो अंदर की ओर सेल एंट्री कर लेगा। अगर बाहर की ओर जब ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगा तो अंदर की ओर सेल कम होगा, तो अंदर की ओर चले जाएगा ऑक्सीजन। अगर अंदर के प्रोसेस होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन में, हायर कॉन्सेंट्रेशन में, तो बाहर निकाल देगा कार्बन डाइऑक्साइड, लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करने लग जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज ए डिफ्यूजन। नाउ वी गो टू द प्रोसेस इज कॉल्ड एज ए ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस का डेफिनेशन है द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू ए सेलेक्टिवली पेरिमेबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली पेरिमेबल मेम्ब्रेन कौन सा है? सेल मेम्ब्रेन। ओके, थ्रू सेलेक्टिवली पेरिमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम ए रीजन of its higher concentration to lower region of lower concentration। इसमें देखना डिफरेंस क्या हो गया, इसमें डिफ्यूजन में डिफरेंस क्या है और ऑस्मोसिस में डिफरेंस क्या है, अब देखेंगे हम। ऑफ लोअर concentration,
of its lower concentration called as the ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में डिफ्यूजन में सेम आ रहा है, लेकिन ऑस्मोसिस डिफ्यूजन में क्या है, सब्सटेंसेस सच एज सॉलिड, लिक्विड और गैशियस है। और इसमें क्या, ऑस्मोसिस में ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स, इसमें क्या है, ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स को देखेंगे। मूवमेंट कैसा है, द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू ए सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अगर ये सेल है, सेल के अंदर वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो बाहर आएगा, अगर वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम होगा अंदर तो बाहर ज़्यादा होगा तो बाहर से अंदर आएगा। सो इस तरह से जो प्रोसेस होता है, तो वाटर का मूवमेंट्स होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है जो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। ओके, दिस इज द डिफरेंसेस बिटवीन द डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस प्रोसेस। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस के जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जो दैट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस क्या होता है। फिर देखेंगे हम सेल वॉल के बारे में फॉर नेक्स्ट क्लासेस। ओके, थैंक यू।